Hello friend, today we'll see numericals on psychometry. So before starting that, let's have a look what we have seen until now. So these are the some psychometric terms like absolute humidity or just humidity or specific humidity or humidity ratio. It is a ratio of this amount of mass of vapor present in air. Okay? Mass of water vapor present in the air. Now denoted by omega. Omega is calculated as 0.622 PV by PA. PA means partial pressure of air. Partial pressure of air can be written as atmospheric pressure minus vacuum vapor pressure, partial pressure of vapor. This is important formula which we are going to use in our numericals. Again, Dalton's law. By using Dalton's law, this formula is derived. What Dalton law says: pressure of mixture is equal to summation of partial pressure of each constituent. Now, air is moist air is a mixture of air and vapor. So pressure of moist air equal to partial pressure of air plus partial pressure of vapor. That is why partial pressure of air is written as partial pressure of moist air minus pressure of moist air minus partial pressure of vapor. Partial pressure of moist air is nothing but atmospheric pressure. So atmospheric pressure minus vapor pressure gives air pressure. Relative humidity can be calculated as partial pressure of vapor to the saturation pressure of vapor. Degree of saturation, enthalpy of air is nothing but 1.005 dry bulb temperature plus humidity into 2500 plus 1.88 dBT dry bulb temperature. This is a carrier for equation of which is used to calculate partial pressure of vapor. These are the processes, psychometric processes. These are the factors which provide comfort. This is summer air conditioning system when outside air is hot and dry. This is summer air conditioning system when outside air is hot and humid, in coastal areas or near the sea area. So in this case, no need to change humidity, just
air is cooled inside the conditioner, the winter air conditioning system. Now today we will see numerical on psychrometric term. So this is our first problem. I read statement. Moist air at 30 degrees Celsius and 1.01325 bar has a relative humidity of 80%. Determine without using the psychrometric chart partial pressure of water vapor and air, specific humidity, specific volume and dew point temperature. ये जो न्यूमेरिकल है, ये अगर आप एग्जाम में आता है तो ये 7 से 8 मार्क के लिए आएगा। बहुत सिंपल है, आपको कितने टर्म्स निकालने के, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर, partial pressure of air, specific humidity, specific volume and dew point temperature. ये 10 मार्क के लिए भी आ सकता है, बहुत सिंपल है। अब आप व्हाट इज गिवन, मॉइस्ट एयर का ड्राई टेम्परेचर दिया है 30 डिग्री सेल्सियस और उसका प्रेशर दिया है 1.01325 बार। ओके, अब देखो हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर। सो हमारे पास एक फॉर्मूला है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वल्स टू partial pressure of vapor to the partial pressure of vapor, saturation vapor, वही उसी एयर का। तो ये हमें निकालना है और हमें सैचुरेशन प्रेशर निकालना है। 30 डिग्री पे वाटर कब कंडेंस होगा, जब उसका प्रेशर 4.2461 किलो पास्कल रहेगा। करेक्ट, ये वैल्यू हमने स्टीम टेबल से निकाली है, इसके लिए आपके पास आपको स्टीम टेबल लगेगा। सो 30 डिग्री का सैचुरेशन प्रेशर है 4.24। अगर 30 डिग्री की मॉइस्ट एयर को हमें सैचुरेट करना है तो उस मॉइस्ट एयर का प्रेशर 4.2461 किलो पास्कल होना चाहिए, तभी वो सैचुरेट होगी या तभी उसमें कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है। तो from 30 degrees Celsius we got saturation pressure of that air, so and humidity is given 80%. So partial pressure of vapor is nothing but 3.397. Just by using one formula हमें आंसर मिला, बराबर। अब हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है ह्यूमिडिटी का। ये पी क्या है, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर या जो एयर मॉइस्ट एयर का प्रेशर है वो कितना दिया है 1.01325 बार है। इस बार को उन्होंने किलो पास्कल में कन्वर्ट कर दिया। अब पार्शियल प्रेशर वेपर कितना निकाला हमने 3.397, बराबर। यहाँ से हमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मिलने वाली है ओमेगा। तो कैलकुलेशन करने के बाद स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितना है 0.213 kg पर केजी ऑफ ड्राई, मतलब अगर 1 kg ड्राई एयर लेते हैं हम, उसमें 0.213 kg वाटर वेपर रहेगा। और अब इस प्रेशर को जो अपने अब जो एयर में अपना वाटर वेपर है उसका प्रेशर कितना आया 3.397। अब इसको इसी प्रेशर में अगर हमें कंडेंस करना है तो हमें उसका टेम्परेचर कम करना होगा। स्टीम टेबल में अगर हम इस प्रेशर का सैचुरेशन टेम्परेचर देखोगे तो वो 28.29 डिग्री सेल्सियस हम स्टीम टेबल, मतलब 3.397 प्रेशर की एयर को वेपर को अगर हमने इतने टेम्परेचर तक लाया तो वो कंडेंस होना स्टार्ट कर देगा सिंपली। तो जो भी वेपर प्रेशर है उसका करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ढूंढो, इट इज नथिंग बट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। समझ में आ गया, क्लियर। और सैचुरेशन कैसे निकालना है, डीबीटी का जो करस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर है वो सैचुरेशन प्रेशर, जो एयर के अंदर जो वाटर वेपर है उसका प्रेशर है, उसके सैचुरेशन टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। हमने यहाँ पर 3 टर्म निकाला, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर, ह्यूमिडिटी रेशियो या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अभी भी कुछ और चीजें बाकी है। हाँ, अब पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर या फिर कैसे निकाल सकते हैं अपन। सो मॉइस्ट एयर का प्रेशर माइनस वेपर प्रेशर, इसका इसका ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर। सब कुछ स्लाइड पे लेके जाता हूँ।
अब ये देखो पीवी अपन पी पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ में क्या लिख सकते हैं मॉइस्ट एयर एक मिक्सचर है एयर का और वेपर का तो एयर का प्रेशर मॉइस्ट एयर का प्रेशर इक्वल्स टू एयर का पार्शियल प्रेशर प्लस वेपर का पार्शियल प्रेशर तो इसको हम क्या लिख सकते हैं मॉइस्ट एयर का प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर सॉरी वैक्यूम में वेपर प्रेशर तो इसका जो सब्सट्रैक्शन होगा मतलब 101.325 माइनस 3.397 इसका जो आंसर आएगा इट इज नथिंग बट पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर समझ में आ गया अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम अब यहाँ पर देखो एटमॉस्फेरिक एयर at 101.325 kilopascal 30 degree Celsius dBT and 15 degree Celsius dew point temperature without using the psychrometric chart using the properties only from tables calculate partial pressure of air and water vapor specific humidity relative humidity vapor density and enthalpy of moisture same है यहाँ पर सम पूछे ये एक फार्मूला लेके उसमें वैल्यू पुट करनी है आपका आंसर आ जाएगा जीवन क्या है मॉइस्ट एयर का और एटमॉस्फेयर का प्रेशर 101.325 बार में कन्वर्ट किया तो 1.01325 बार डीबीटी 30 डिग्री ड्यू पॉइंट 15 डिग्री फ्रॉम टेबल अब डीबीटी 30 डिग्री है उसका जो सैचुरेशन प्रेशर रहेगा नथिंग बट सैचुरेशन प्रेशर स्टीम टेबल से हमें मिलेगा 0.04246 बार ठीक है अब 15 डिग्री को अगर उस मॉइस्चर के वेपर को कंडेंस होना है तो उसका प्रेशर कितना चाहिए 0.01705 बार बरोबर मतलब वो वेपर प्रेशर कितना रहेगा 0.01705 बार क्लियर सो पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर क्या आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वेपर प्रेशर 0.9842 ये समझ में आ गया आपको इसी एयर को सैचुरेट किया तो उसका प्रेशर आएगा 0.0426 बार फ्रॉम स्टीम टेबल 30 डिग्री के सामने की जो प्रेशर की वैल्यू नथिंग बट सैचुरेशन प्रेशर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 15 मतलब वो एयर 15 डिग्री को कंडेंस होने वाली है अब 15 डिग्री को कंडेंस कब होगी जब उस एयर में जो वेपर है उसका प्रेशर 0.17 रहेगा मैंने आपको पहले बताया जब तक सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं आती है तब तक फेज चेंज नहीं होगा बराबर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों भी सैचुरेशन पे होना चाहिए तभी कंडेंसेशन स्टार्ट होगा अब 2.15 मतलब वो कंडेंस होने वाली है अब वो 15 डिग्री को कब कंडेंस होगी जब वेपर का प्रेशर 0.0175 बार रहेगा ये कहाँ से निकाला है हमने स्टीम टेबल से 15 डिग्री के सामने जो प्रेशर है इट इज सैचुरेशन प्रेशर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस मतलब अगर ये प्रेशर रहा तो 15 डिग्री की वो फेज चेंज करेगा बराबर अब हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर पार्शियल प्रेशर क्या रहेगा एटमॉस्फेयर मॉइस्ट एयर है मॉइस्ट एयर में एयर प्लस वेपर है तो एयर का प्रेशर कैसे निकालेंगे मॉइस्ट एयर का प्रेशर माइनस वेपर का प्रेशर मॉइस्ट एयर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कितना दिया है 101.325 किलो पास्कल को बार में कन्वर्ट कर लिया तो वो 1.01325 बार माइनस जो अभी हमने वेपर प्रेशर निकाला है वो ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर अब यहाँ पर हमने वेपर का भी प्रेशर निकाल लिया और एयर का भी प्रेशर निकाल लिया पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर एंड वाटर वेपर पहली लाइन हो गई अब दूसरा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला है 0.62 पीवी अपॉन पी और उसको हमने और सिंप्लीफाई किया पीवी अपॉन पी माइनस पीवी अब यहाँ पर पी हमने ऑलरेडी निकाला है तो पी माइनस पीवी क्यों निकालना डायरेक्ट हम पी रख देंगे बराबर तो ये क्या आएगा 0.622 इंटू पीवी हमने आगे भी ऊपर निकाला है और पी है 0.98 जो अभी अभी हमारा ये वाला ये एयर का प्रेशर और ये वेपर का प्रेशर तो पुट किया तो हमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मिलेगी ये केजी किलो जूल बाय मिस्टेक से यहाँ पर केजी अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है वेपर प्रेशर और सैचुरेशन प्रेशर
वेपर प्रेशर कितना है उस एयर में, इतना। अगर हमने उसको सैचुरेट किया तो उसका प्रेशर कितना रहेगा, इतना। मतलब 0.1705 बार डिवाइड बाय सैचुरेशन प्रेशर, वो मिलेगा 0.40। मतलब 40.15% उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, बराबर। अब हम निकालेंगे एंथैल्पी। एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या है, 1.005 इंटू ड्राई बल्ब टेम्परेचर प्लस स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंटू 2500 प्लस 1.088 इंटू ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अब यहाँ पर हमने ड्राई बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर दी, हमें मिला एंथैल्पी 57.69 किलो जूल पर केजी। स्पेसिफिक वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, पीवीआरटी। स्पेसिफिक वॉल्यूम आर टी अपन पी, आर कितना है का 0.287, टेम्परेचर कितना है उसका दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में किया तो 303, और उसका प्रेशर हमने अभी भी इतना निकाला है, वो बार में था, उसको हमने किलो पास्कल में कन्वर्ट कर दिया। ये जब हम किलो जूल में लेते हैं तो प्रेशर किलो पास्कल में लेना होता है, ये अगर जूल में लेते हैं तो प्रेशर पास्कल में, जो मिला वो हमें इतना। अब इसको स्पेसिफिक वॉल्यूम को, व्हाट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम, रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। अब ये स्पेसिफिक वॉल्यूम ड्राई एयर का, ड्राई एयर में कितने परसेंट या कितना अमाउंट है वेपर का, तो इतना, जो अभी हमने अभी निकाला। इसका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि गिवन एयर में कितना कंटेंट है वाटर वेपर, तो उससे हमने मल्टीप्लाई किया वाटर इसको, तो मिला हमें 0.1। ये वेपर की डेंसिटी है। अगर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो एयर की डेंसिटी मिलेंगे, मॉइस्ट एयर की। क्लियर। अब देखो, एयर एट 30 डिग्री सेल्सियस डीबीटी एंड 25 डिग्री सेल्सियस डब्ल्यूबीटी is heated to 40 degree Celsius. If the air is 300 meter cube per minute, find the amount of heat added per minute, relative humidity and weight bulb temperature of air. Take air pressure to be 1 bar. अब इसके लिए आपको साइक्रोमेट्रिक चार्ट की जरूरत पड़ सकती है। 25 डिग्री वेट बल्ब टेम्परेचर के लिए सैचुरेशन प्रेशर कितना है, 0.0, स्टीम टेबल से मिल रहा है, तो मैंने स्टीम टेबल से लिया डायरेक्टली। अब ये कैरियर इक्वेशन यूज करके यहाँ पर हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं दी है। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी दी रहती तो हम डायरेक्टली मतलब इजीली पीवी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर दिया है कि वो हमें हमें खुद पूछा है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, तो उसके लिए हमारे पास और एक ही ऑप्शन बचा है कि कैरियर इक्वेशन। कैरियर इक्वेशन में सैचुरेशन प्रेशर की प्रेशर ये सब दिया हुआ है। वेट बल्ब टेम्परेचर पे सैचुरेशन प्रेशर इतना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार है, वेट बल्ब टेम्परेचर सैचुरेशन प्रेशर इतना है, डीबीटी ड्राई बल्ब टेम्परेचर 30, वेट बल्ब टेम्परेचर 25, और वेट बल्ब टेम्परेचर 25, ये पुट किया तो हमें मिलेगा 0.025, सॉरी 0.0284 बार। यहाँ पर मिला हमें वेपर प्रेशर, वो यूज करके हम ह्यूमिडिटी निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 0.622 पीवी अपॉन पी माइनस पीवी। पीवी मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर, जो हमने आगे भी निकाला। पी मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ से हमें वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मिली पहले कंडीशन में, जब जब ड्राई बल्ब टेम्परेचर 30 और वेट बल्ब टेम्परेचर 25। अब एट 40 डिग्री, अभी यहाँ पर देखा कि ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर 30 को हमने हीटेड किया तो 40 डिग्री तक हो गए। हमें क्या निकालना है, एंथैल्पी, कितना हीट ऐड किया, तो इसका हीट ऐड माइनस इसका हीट ऐड, उसका डिफरेंस हमें कितना हीट हमने ऐड किया वो दे देगा। तो हमने 30 डिग्री का यहाँ तक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकाला, अब हम 40 डिग्री का निकालेंगे। अब ये सेंसिबल हीटिंग है तो दोनों में ओमेगा सेम रहेगा और पीवी भी सेम रहेगा। तो जो हमने पीवी निकाला है पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर वो भी सेम है, उससे रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें मिलेगी पीवी बाय पीएस। ये भी हमने 40 डिग्री को सैचुरेशन प्रेशर इतना है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इतने मिले। अब यहाँ पर देखो हमने अब इसकी एंथैल्पी निकालने वाले, सेम फॉर्मूला 0.105 इंटू डीबीटी प्लस 0.0179, ये ओमेगा है, 2500 प्लस 1.88 इंटू ड्राई बल्ब टेम्परेचर, यानी मिला इतना। अब ये 300 मीटर क्यूब पर मिनट एयर का वेट कितना है, मतलब उसकी मास कितना है, तो यहाँ मिलेगा पीवीआरटी, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर।
तो यहाँ से हमें मिलेगा 335.18 kg पर मिनट। ये वेट की वजह मास रहने लगे थे। दिस इज मास ऑफ 3 मीटर क्यूब पर 300 मीटर क्यूब पर मिनट। क्लियर? अब यह इतना मास है एयर का, उसको हमने हीट किया तो जो 40 डिग्री का हीट किया तो उसकी एंथैल्पी 86 है और 30 डिग्री को एंथैल्पी 76 है, बराबर। तो 86 86.29 माइनस 76 पर केजी की है, लेकिन इतने केजी हमारे पास है, तो टोटल कितना ऐड किया हमने? 3449 किलो जूल पर मिनट। क्लियर? ये आगे के न्यूमेरिकल में आपको ठीक है, ले लेगा कितना बड़ा है, देखो बहुत बड़ा। One stream of air at 5.5 meter cube per minute at 15 degrees Celsius and 60% relative humidity flows into another stream of air at 15 meter cube per minute at 25 degrees Celsius and 70% relative humidity. दो अलग अलग एयर मिक्स हो रहे हैं। Calculate for the mixture dry bulb temperature, wet bulb temperature, specific humidity and enthalpy. जो पहली एयर है उसका टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है? 60% है। उसका वॉल्यूम कितना है? 5.5 मीटर क्यूब पर मिनट। अब ये 15 डिग्री के लिए सैचुरेशन प्रेशर कितना है? फ्रॉम स्टीम टेबल 0.017051 बार। इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी दी है तो उसका वेपर प्रेशर हम निकाल सकते हैं जीरो बाय यूजिंग दिस फार्मूला। वो मिला PV इक्वल टू 0.0123 बार। अब देखो मास ऑफ एयर PVRT के ये P माइनस PV क्या देगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर, ये एयर का निकल रहा है, तो वो हमें कितना मिला? PVRT, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर, ये उसको किलो पास्कल के लिए वॉल्यूम दिया है R, और T को हमने 15 को हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया 288। तो ये कितना आया मास? ये। अब इसमें वाटर वेपर का मास कितना है? सॉरी, अब इसकी ह्यूमिडिटी निकालेंगे हम यूजिंग दिस फार्मूला। तो ये मिला हमें 0.06343। इसका मास भी निकाला हमने उस एयर का और उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी निकाली। तो उसकी एंथैल्पी उसी टेम्परेचर को 15 डिग्री को 1.005 ड्राई बल्ब टेम्परेचर प्लस स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी into 2500 प्लस 1.88 ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अब वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर 15 पुट किया, ये आपका 15 होना चाहिए, तो 34.12 जूल पर केजी मिला। ये हो गया एंथैल्पी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और मास पहले स्ट्रीम का, जिसका टेम्परेचर 15 डिग्री और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60 डिग्री है। और दूसरा आ रहा है 25 डिग्री पे और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70। उसके लिए सेम कैलकुलेशन किया हमने। सैचुरेशन प्रेशर फॉर 25 डिग्री ये आया फ्रॉम स्टीम टेबल, स्टीम टेबल से निकालना है आपको, अलाउड स्टीम टेबल। बाय यूजिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर निकाला, वो इतना आया। मास ऑफ एयर इतना आया और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बाय यूजिंग दैट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी फार्मूला वो भी इतने आए। उसकी एंथैल्पी बाय टेकिंग ड्राई बल्ब टेम्परेचर 25 वो भी इतने आए, बराबर। अब मास ऑफ ड्राई एयर पर यूनिट ऑफ मॉइस्चर। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये इधर गया तो मास ऑफ एयर प्लस ओमेगा इनटू मास ऑफ एयर इक्वल्स टू मास ऑफ एयर। जो मॉइस्ट एयर है, मॉइस्ट एयर का मास कितना है? 6.6722। तो अब वो मॉइस्ट एयर में ड्राई एयर भी है और वेपर भी है। अब इसको, ये हमने देखा पहले, इसको इधर लेके जाओ, जब हमें मिलेगा मल्टीप्लाई करो मास ऑफ एयर से, मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ एयर इनटू ओमेगा, तो ये हमें क्या देगा? उस मॉइस्ट एयर में कितना मास ऑफ ड्राई एयर है। ये मॉइस्ट एयर का मास है और ये ड्राई, उस मॉइस्ट एयर में ड्राई एयर का मास है। क्लियर? सिंपली इसमें से आपने ह्यूमिडिटी को माइनस कर दिया तो आपको ये आंसर मिलेगा। और दूसरे इसमें इतना है। अब अगर हम इसका एंथैल्पी बैलेंस करेंगे, मतलब पहली स्ट्रीम आ रही है, दूसरी स्ट्रीम आ रही है, मिक्स हो गई, तो पहले स्ट्रीम का मास, मास ऑफ एयर इनटू उसकी एंथैल्पी प्लस मास ऑफ एयर उसकी एंथैल्पी इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ एयर जो मिक्स होंगे इनटू वो मिक्सर की एंथैल्पी। मतलब ये इधर गया, बराबर, ये दोनों मिक्स होंगे तो इनका मास कितना होगा? M1 प्लस M2। ये इधर गया तो उसकी एंथैल्पी H है, वो हमें निकालनी है। तो ये M1 M2 इधर हम इधर लाके आए, ये अभी बाकी सब टर्म नोन है तो इसके एंथैल्पी हम निकाल सकते हैं। ये हमने TD2 में पढ़ा है सेकंड ईयर में, मिक्सिंग को निकालना।
M1H1 प्लस M2H2 इक्वल्स टू M3H3। M3 मतलब दोनों का मिक्सचर, मतलब M3 को M1 प्लस M2 लिख सकते हैं, और H3 हमें निकालना है, वो H2 मतलब मिक्सचर की एंथैल्पी, वो हमने निकाली। उसी तरीके से हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में निकाल सकते हैं मिक्सचर की, बराबर, और उसी तरह हम उसका ड्राई टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? ये न्यूमेरिकल है, अब इसको फिर से एक बार देख लीजिए, कुछ प्रॉब्लम आते मेरे को आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम आते हो व्हाट्सएप पे मैसेज करो। थैंक यू।